All right. Hello, everyone, and welcome to the next part in time value of money in finance. Last video के अंदर हम लोगों ने देखा था कि we were working on equity instruments when it came to calculating implied calculating implied returns and growth, right? और अब हम लोग उसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं. We're still looking at equity instruments in terms of implied rate and growth, right? Implied return and implied growth rates. तो लेकिन अब हम लोग जो है एक और उसकी वेरिएशन को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सबसे पहले क्या होता है, और उसके अंदर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के थ्रू आप किस तरीके से you can calculate या come up with the implied return and growth. Okay, these are different variations, क्योंकि different situations हो सकती हैं आपके लिए on the exam. You could be asked different questions या different scenarios हो सकते हैं. तो अगर depending on the type of scenario हो सकता है कि आपको जो नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रोथ मेथड है उसके थ्रू आपको इम्प्लाइड रिटर्न निकालना पड़े, या हो सकता है आपको पीई रेशियो जो कि अभी आज हम देखेंगे इसके थ्रू हम लोग को इम्प्लाइड रिटर्न और ग्रोथ निकालना पड़े, राइट? डिपेंडिंग ऑन वट एवर द एग्जामिनर पुट्स इन द क्वेश्चन, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जो लोग, मैं आप लोगों को पहले से थोड़ा सा हेड्स अप दे दूं कि algebraic manipulation इसके अंदर थोड़ी बहुत होगी, लेकिन it's going to be at a very basic level, so do not worry about it. I will take you guys through the steps which will be required in order to come up with the final answers, right? जो कि basically इसके अंदर दोनों required return और required growth rates हमें calculate करने होंगे, right? और please note कि PE ratio, ये जो हम PE ratio कर रहे हैं इधर, ये PE ratio होगा in relation to the government growth model. Okay, that's an important point to consider. मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि व्हाट इज द पी रेशियो, राइट? पी रेशियो बेसिकली एक एज द नेम गोज, इट्स रेशियो which is used, so सबसे पहले what is it, right? So it is basically the price per share of the stock divided by EPS or earnings per share. Okay, price per share ये normally stocks के लिए यूज किया जाता है, और right divided by, so the price per share divided by the earnings per share, right? तो ये भी क्यों यूज करते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेंगे होता क्या है. What is the ratio? It's simply calculated as it can be calculated by dividing the price. Let's say the price of the stock is $20, okay? $20, and earnings per share is, let's say, $2, okay? और please note, ये जो EPS है, earnings per share, ये this could vary, different types of earnings हो सकती हैं, but normally so the two most important types are annual earnings, okay? Annual earnings, okay? यानी कि जो लास्ट ईयर के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर जो टोटल अर्निंग्स हैं 12 महीने की, वो आप डिवाइड करते हैं, उसको वो डिनोमिनेटर में जाता है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर एनुअल अर्निंग्स, और इट कुड आल्सो बी द ट्रेलिंग TTM, trailing 12 month. TTM stands for trailing 12 month earnings, okay? Trailing 12 month earnings, TTM, okay? यानी के from the point where we are standing right now, और T is equal to 0 पे हम खड़े हैं, तो last 12 months के अंदर हमारी कितनी earnings अंदर आई हैं, okay? Trailing 12 months, okay? तो इसको जो हम डिवाइड, सो दैट्स बेसिकली द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? तो आप इन दोनों को, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं प्राइस कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी? इट्स गोइंग टू बी, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी 10, okay? So the PE ratio of 10, right? What does it actually show? मैं आप लोगों को अभी से एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं
फिर ये हम इसके अंदर स्लाइड्स के विल गो टू द स्लाइड्स टू लर्न मोर अबाउट इट. A P ratio of 10 basically shows that for every $1 in earning, मैं आपको ये तो अभी जो बोलूँगा, some of you might not understand this, but just give me some time और मैं आप लोगों को ये I'll make sure you can understand this, okay? A P ratio of 10 means that for every $1 in earnings, for every $1 in earnings कहाँ है? ये डिनोमिनेटर में earnings है, okay? The market, यानी कि मार्केट जो है is putting a price of $10, okay? In other words, right? So one more time, I'll repeat this one more time, okay? A PE ratio of 10 means that for every $1 in earnings for this share, please note, market is willing to pay $10. Okay? यानी कि हर $1 जो कंपनी अर्निंग्स में कमाती है, अर्निंग्स क्या हो गया? अर्निंग्स पर शेयर. ओके, ये जो इधर हमने डिनोमिनेटर में ये जो हमने कैलकुलेट किया है इधर, ये वाला जो EPS है, ये अर्निंग्स पर शेयर है ना. तो a P ratio of 10 means 10, okay, I'm being precise. A P ratio of 10 means that for every $1 in earnings on a per share basis, the market is willing to pay how many dollars? $10, right? तो ये basically this is an important, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है. Why do we use ratios instead of just saying, why can we not just take the price of two stocks and just compare it, right? Why cannot not say this? Why cannot not do this? Why cannot say कि stock A जो है उसकी प्राइस $100 है और stock B की जो प्राइस है वो $20 है. Why cannot not compare these two straight away? You could, but उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये $100 का जो है, ये $100 का जो ये स्टॉक A है, ये $100 की इसकी प्राइस जो है, लेकिन बाय इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ अगर मैं प्राइस को कंपेयर करूं तो इट डज नॉट टेल मी मच. इट डज टेल मी कि स्टॉक A जो है इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टॉक B. मगर द क्वेश्चन इज कि क्या उन दोनों स्टॉक्स की अर्निंग्स कितनी है? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अगर एक चीज, ये बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. अगर एक स्टॉक जो है ऑन अ पर शेयर बेसिस $10 साल की कमाता है, $10, ओके, $10 पर शेयर, और स्टॉक, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि स्टॉक ए जो है ऑन उसकी जो EPS है लेट्स $10 है, ओके, और स्टॉक बी जो है उसकी EPS लेट्स से इज $2. अगर मैं आपको सिर्फ ये कहता कि स्टॉक ए और स्टॉक बी की सिर्फ प्राइसेस देख लें, यानी कि एक देख लें $100 का, एक $20 का, आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? तो आप कहते हैं कि भाई ये तो ऑफ कोर्स सिंस द बेसिक रूल ऑफ फाइनेंस इज टू बाय लो एंड सेल हाई, आप कहते हैं मैं तो उसको लेट्स से यू वुड वांट टू बाय द $20 शेयर. लेकिन द थिंग इज कि बाय इटसेल्फ इट डज नॉट शो एनीथिंग. The prices by themselves don't really give you a good idea about your आपका एनालिसिस इनकम्प्लीट होता है. क्यों? क्योंकि भाई आपने ये prices by themselves are not telling you the most important thing, which is कि भाई दोनों कमाते कितना है, right? तो if you look at, और let's say अगर मैं इसको ये करता कि लेट्स से कि स्टॉक बी जो है उसकी लेट्स से $1 in अर्निंग होता, लेट्स से अगर ये सिचुएशन होती तो इस सिचुएशन में मैं कौन सा शेयर बेहतर था खरीदना? तो या कौन सा महंगा था या कौन सा शेयर सस्ता था? ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज, इफ आई गिव यू दिस आंसर, इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, तो व्हाट वुड यू आंसर? You get what I'm saying, guys? This is very important for you guys to understand. I'm going to remove all the annotations. Maybe we're going to spend some time on this.
अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि स्टॉक ए, ये उसी एग्जांपल को मैं एलैबोरेट कर रहा हूं, स्टॉक ए जो है उसकी प्राइस है $100, ओके, और उसका ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर है $20, ओके, लेट्स से, ओके, और स्टॉक बी जो है उसकी प्राइस है $20 और उसका जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर है, वो लेट्स से $1 है, ठीक है। तो अगर अब दोज हु कम फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, उनको थोड़ी सी आइडिया ऑलरेडी सेंस होना शुरू हो गई होगी कि बाय इटसेल्फ, अगर मैं ऑल बाय इटसेल्फ अगर मैं इन दोनों को देखूं कि ये $20 है, एक मुझे 20 का मिल रहा है, एक मुझे 100 का, तो मैं आपको बोलता विच वन वुड यू लाइक टू बाय, अगर मैं आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अगर मैं आप लोगों को ईपीएस इन दोनों शेयर्स का ना दूं, तो आप लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? सबसे पहले तो द लॉजिकल आंसर इज कि यू कैन नॉट रीच टू अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, बिकॉज यू हैव टू सी के ये दोनों शेयर्स कमाते कितने ऑन अ पर शेयर बेसिस। प्राइस तो आपने मुझे बता दी, लेकिन आपने ये तो मुझे नहीं बताया कि वो कमाते कितना है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि वो इतना कमाते हैं, तब आपके पास वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी, और तब आप इस सिचुएशन में आएंगे कि आप डिटर्मिन कर सकें कि कौन सा शेयर महंगा है, कौन सा शेयर सस्ता है, कंपेयर टू ईच अदर, द टू स्टॉक्स कंपेयर टू ईच अदर, ओके। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूं, लेट्स से, राइट, तो क्या होगा? स्टॉक ए जो है उसका पीई क्या हो जाएगा? स्टॉक ए का पीई हो जाएगा, प्राइस इज $100 डिवाइडेड बाय व्हाट्स द अर्निंग्स, $20, ओके। अच्छा, एक बात, अगर मैं स्टॉक ए और स्टॉक बी को देखूं, इधर सामने स्क्रीन पे आ रही है इंफॉर्मेशन, तो बाय विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बोथ अर्निंग्स पर शेयर ऑफ बोथ द शेयर्स, आप क्या कंक्लूड करेंगे? आप बोलेंगे, मैं आपको बताता हूं, आप लोग कंक्लूड करेंगे कि लेट्स बाय स्टॉक बी। क्यों? स्टॉक बी सस्ता है, राइट। और बेसिक रूल ऑफ फाइनेंस क्या कहता है कि बाय लो सेल हाई, ठीक है, यानी कि जो सस्ती चीज है, या बाय अंडर वैल्यूड सेल ओवर वैल्यूड, ओके। तो अगर ये सिचुएशन आपको बोलता, तो आप अगर इफ यू वर इनएक्सपीरियंस्ड, राइट, एंड इफ यू राइट, तो व्हाट यू वुड डू इज यू वुड से ये तो $20 वाला सस्ता है, वो ले लें। लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है। आपको फौरन पूछना चाहिए कि भाई दोनों की अर्निंग्स कितनी है ऑन अ पर शेयर बेसिस, ठीक है। क्योंकि एक शेयर जो कि कंपेयर, लेट्स से इस केस में स्टॉक है जो है, वो जब कमाता ही इतना कई 20 टाइम्स मोर ज्यादा कमाता है ऑन अ पर शेयर बेसिस, जो है वो स्टॉक बी से स्टॉक ए 20 टाइम्स ज्यादा कमाता है, तो प्राइस तो उसकी ज्यादा होनी है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अगर एक शेयर है वो साल का आपको $1 कमा के देता है, उसकी क्या प्राइस आप पे करेंगे? अगर आपसे पूछूं कि अगर एक शेयर है वो आपको साल का $1 कमा के देता है, आप उसकी कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? आप कोई ना कोई उसको वैल्यू लगाएंगे, ठीक है ना। लेट्स से इस केस के $20 है, बनस्बत उसके मैं अगर आपको बताऊं दूसरा शेयर है जो कि आपको साल का $20 कमा के देता है, तो आप उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे? ओके, ऑफ कोर्स द लॉजिकल आंसर इज, द रैशनल आंसर इज कि जो चीज मुझे ज्यादा कमा के देती है, मैं उसके ऊपर एक ज्यादा हायर वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। तो अब वो क्या कैलकुलेशन स्पेसिफिकली क्या होती है हम करके देखेंगे, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गिविंग यू हियर, के जो prices by themselves don't mean anything alone on a relative basis। मैं आपको दो शेयर्स की प्राइसेस बता दूं, बोलूं कौन सा चूज करेंगे, you cannot decide, you should not decide, you should say कि भाई इनकी अर्निंग्स कितनी है ये तो बताएं, राइट। तो अब लेट्स डू द कैलकुलेशन। अब स्टॉक ए को लेते के चलते हैं, ये जो मैं कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं कि स्टॉक ए जो है वो $100 ऑन अ पर शेयर बेसिस कमाता है, और $20 पर शेयर कमाता है, ईपीएस $20 और उसकी प्राइस $100 है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो गया? ये दोनों कटे 5 हो गया। स्टॉक ए का जो पी रेशियो है इज गोइंग टू बी 5, ओके, एज कंपेयर टू स्टॉक बी। स्टॉक बी की क्या सिचुएशन है भाई?
स्टॉक बी जो है उसकी प्राइस है $20 और अर्निंग्स पर शेयर है $1, तो उसका पीई हुआ 20. ओके, अगर मैं इस अब जो है ना, थोड़ी सी पिक्चर काफी क्लियर हो रही है, राइट, इन टर्म्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन. प्लीज रिमेंबर, अंडर वैल्यूएशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस. उसके अंदर आप लोग, यू गाइस वुड कम अंडर व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यूएशन. मैं एक वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो, प्रॉब्ली इस वीडियो के बाद आई विल मेक अ वन होल वीडियो जो कि आपसे ये डिस्कस करेगा कि व्हाट इज फेयर वैल्यूएशन, व्हाट इज अंडर वैल्यूएशन एंड व्हाट इज ओवर वैल्यूएशन. ओके, लेकिन राइट, सो अगर अब मैं देखूं तो राइट, अगर मेरे पास ये आंसर्स दोनों आ गए, यानी कि स्टॉक ए का जो पी है वो 5 है और स्टॉक बी का पी 20 है, तो विच वन इज मोर एक्सपेंसिव, विच शेयर इज ओवर वैल्यूड, विच शेयर इज रिलेटिव बेसिस बात कर रहा हूं. अगर इन दोनों शेयर, स्टॉक या स्टॉक बी कंपेयर किया जाए तो कौन सा शेयर ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि शेयर बी is more expensive. Why? Because for every $1 in earnings, मार्केट उसकी जो प्राइसिंग कर रही है $20 लगा रही है. ओके, मार्केट जो है, अब देखिए इसके और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं कि किसका रिटर्न ज्यादा है, किसकी रिस्क ज्यादा है. बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट उसको वो कर रही है, डिफरेंटली प्राइस कर रही है. लेकिन जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं, ऑल एल्स इक्वल, ये आप सुनेंगे, या आप लोग सीएफए में बहुत सुनेंगे कि ऑल एल्स इक्वल, ऑल एल्स दोनों बाकी सब कुछ बराबर हो, तो उस सिचुएशन में जब आप इन दोनों शेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक ए और स्टॉक बी को, तो उस सिचुएशन में स्टॉक बी इज मोर एक्सपेंसिव. इसके बारे में कह सकते हैं या स्टॉक बी इज मोर लाइकली टू बी ओवर वैल्यूड. Why is it overvalued? Because एक डॉलर इन अर्निंग्स के लिए, अभी हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, रिमेंबर, रिलेटिव, वन स्टॉक टू अनदर, एक स्टॉक की प्राइस कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द अदर. ओके, तो why is that? Because स्टॉक बी के केस में जो आपका $1 जो ये कंपनी इन अर्निंग्स कमाती है, मार्केट उसके लिए $20 देने को तैयार है. ओके, बनिस्बत उसके स्टॉक ए जो है उसका जो $1 वो कमाती है, $1 इन अर्निंग्स कमाती है, उसके लिए मार्केट सिर्फ $5 आपको चार्ज कर रही है, $5. ओके, सो विच वन वुड यू बाय? द रैशनल इन्वेस्टर वुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर relative. अगर इधर relative valuation की बात करें तो मैं इधर आई एम बीइंग मोर स्पेसिफिक ओवर हियर. आई से कि क्योंकि मार्केट ऑन रिलेटिव बेसिस स्टॉक ए को ए हर डॉलर इन अर्निंग्स को के लिए लो कम प्राइस लगा रही है, आई वुड रादर बाय स्टॉक ए एज कंपेयर टू स्टॉक बी, राइट? ऑल एल्स इक्वल. Okay, so that's basically a quick overview of price to earnings ratio. Okay, I'm going to remove all the annotations. Okay, now let's start with this. Now let's start by discussing the bullet points. Okay, now अच्छा, अब आ जाते हैं, एक छोटी सी डिस्कशन ही करते हैं. फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट है वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असेसिंग स्टॉक प्राइसेस, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू इवैल्यूएट देम बेस्ड ऑन द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू इन लॉट ऑफ डिटेल. ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं. द पीई रेशियो इज अ कंपैरेटिव वैल्यूएशन, इज अ कंपैरेटिव. ओके, one stock against another or multiple stocks against each other. The PE is a comparative valuation measure derived by dividing the share price by the earnings per share. ये हमने डिस्कस कर लिया. क्या होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो? क्या होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर. ओके, दैट्स द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको डिस्कस कर रहा है. I'm going to remove all the annotations. So for instance, a stock has a PE of 10. ये अब जो हम स्लाइड पढ़ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, राइट? दिस इज रिवीजन हो रही है आप लोग इस तरीके से. फॉर इंस्टेंस, if a stock has a PE of 10, it signifies that the investors are ready to pay 10 times
the earnings per share for that stock. Okay, so ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं. अगर एक स्टॉक का पीई रेशियो 10 है एज कंपेयर टू अनदर स्टॉक जिसका पीई रेशियो कितना है, 6 है. एक का पीई, स्टॉक ए का पीई 10 है, स्टॉक बी का पीई 6 है. दिस इज डिफरेंट सिनेरियो. ओके, वो लास्ट क्वेश्चन से ना उसको कंफ्यूज करें. मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर प्राइस $10 है, एक का पीई 10 है, दूसरे का पीई 6 है, तो इस सिचुएशन के अंदर it is correct to say कि I'm going to remove some of this, just a minute. इस सिचुएशन में it is correct to say कि that investors are ready to pay 10 times the earnings per share for that stock, indicating that stock A जिसका PE 10 है, stock A is pricier या it's more expensive compared to stock B. Okay, जिसका PE 6 है. Okay, ये बहुत सिंपल सी. अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, प्लीज read the slide again, pause your videos and read the slide again. This is a very simple thing. मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए. ओके, आ जाएगा समझ. और रिमेंबर, वापस वही वाली बात, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पॉज द वीडियो, गो थ्रू इट अगेन 1 2 3 4 दफा करेंगे. समझ नहीं आती, समझ आ जाएगी. पहली आइटरेशन में नहीं आई, पहली दफा रीडिंग में, वापस रीड करें. सेकंड टाइम थोड़ी और बेहतर आएगी, और थर्ड टाइम फिर करें, उससे और बेहतर आएगी. चौथी दफा में आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. रिमेंबर दिस, सीएफए के अंदर ये होता रहेगा. पहली दफा चीज पढ़ने से समझ नहीं आनी, अगर नहीं आ रही तो फिर पढ़ें उसको, फिर पढ़ें जब तक समझ नहीं आ जाती. ग्रिट कहते हैं इसको. ग्रिट एक अंग्रेजी का टर्म है कि परसोवेरेंस. ओके, टेनासिटी. जस्ट स्टिक विद इट and you will get it. Okay, let's move ahead. Final point by the P ratio isn't limited to individual stocks. P ratio जो है वो individual stocks को सिर्फ नहीं सिर्फ तक लिमिट, बल्कि indices, stock indices such as like the 500 भी, S&P 500 भी जो है, उसके ऊपर भी आप P ratio लगा सकते हैं. यहाँ क्या मतलब, what is an index, what are indices, what is an index? An index is a collection of stocks. Okay, अगर मैं लेट्स से मेरे पास स्टॉक A $10 का है, उसकी प्राइस है. ओके, प्राइस इज 10, EPS इज 20, सॉरी प्राइस इज 100, EPS 20. स्टॉक B की जो प्राइस है वो 10 है और EPS इज 5, लेट्स से. ओके, तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, स्टॉक या स्टॉक भी. अगर मैं इन दोनों को मिला दूं फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये दोनों मिलके एक इंडेक्स बन सकते हैं. ओके, नॉर्मल इंडेक्सेस के ज्यादा शेयर्स होते हैं, लेकिन बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इज स्ट्रांग. ओके, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये इट स्टिल अप्लाइज. मल्टीपल शेयर्स को आप कंबाइन कर देते हैं तो एक इंडेक्स बन जाता है. तो आप उसकी तरह क्या करेंगे, उसकी तरह प्राइसेस को सबको टोटल करेंगे. एक इंडेक्स का पी कैसे निकालेंगे आप? जो जितने भी इंडेक्सेस उस इंडेक्स के अंदर हैं, जितने भी स्टॉक्स उस इंडेक्स के अंदर हैं, उनकी आप प्राइसेस को ऐड करेंगे. यू विल टेक दैट एज द न्यूमरेटर इन योर पी कैलकुलेशन. प्राइस में आप उन सब की शेयर्स की टोटल प्राइसेस हैं उनको ऐड करेंगे, और अर्निंग्स जो हैं, अर्निंग्स पर शेयर जो आपके हर शेयर की है, उनको भी ऐड करेंगे जितने भी शेयर्स हैं. ओके, और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे. राइट, टोटल करके आप कर देंगे. टोटल प्राइस of all the shares combined together plus the price of the earnings per share of all the shares combined together divided by each other. Okay, ये एक simplified version बता रहा हूँ आपको. राइट, उसमें तो कुछ complexities और हो सकती हैं कि dividends adjustment और share buybacks, और वो उसमें हम नहीं पढ़ रहे अभी. keeping it simple. Okay, so anyway, that's the way things work. Okay, I'm going to remove all the annotations and let's move ahead. अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर. लेट्स कम टू द फॉर्मूला फॉर पीई. ओके, नाउ वी कैन रिमेंबर अभी हम टॉपिक आप लोग याद रखें. मैंने आपको पीई रेशियो डिटेल में समझाया, लेकिन याद रखें ये टॉपिक क्या है.
दिस इज इस टॉपिक में इम्प्लाइड रिटर्न्स एंड इम्प्लाइड ग्रोथ रेट्स हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं. ओके, रिमेंबर दैट. पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं. वी कैन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन दिस रिलेटिव वैल्यूएशन मेट्रिक विच इज द पी रेशियो एंड द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एज फॉलोज. यानी कि पी रेशियो और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. यू नो गाइस रिमेंबर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. लेट मी शो यू. दिस इज द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D1. D1 is your next year's dividend, next period's dividend, okay, divided by R minus G, okay. This is your Gordon growth GGM, Gordon growth model, okay. अच्छा, अब ये तो नॉर्मल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, ठीक है. अब मैं आपको उसकी दिखा रहा हूं कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर आप पी रेशियो को की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं. ओके, वो ऐसे करते हैं. लुक एट दिस. दिस इज हाउ यू, ये जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है GGM, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से, प्लीज रिमेंबर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की लेफ्ट साइड पे क्या है. इट्स द प्रेजेंट वैल्यू और द प्राइस. लेट्स से वी हैव द प्राइस. ओके, द प्राइस ऑफ द शेयर, द फेयर मार्केट प्राइस. ओके, यानी कि फेयर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं. ये फॉर्मूला लगाते हैं D1 अपॉन R माइनस G, राइट. गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. ओके, तो अगर आप गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट द प्राइस, तो अगर मैं आपको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की कोई बोलूं कि उसके अंदर उसको एडजस्ट करें इस फॉर्मूले को, ताकि यू कैन कैलकुलेट द पी रेशियो यूजिंग द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तो आप क्या करेंगे. इसको जो है लेफ्ट साइड को, जो कि प्राइस ये लेफ्ट साइड है, इसको आप डिवाइड करेंगे अर्निंग्स पर शेयर से, E1 से, विच इज द नेक्स्ट ईयर्स अर्निंग. E1, please remember, I'm going to remove all the notations. E1 is going to be your next 12 months earnings, okay? Yeah, next financial year की earnings, right? Depending on where you are standing at the current point in time, okay? तो आपने प्राइस को डिवाइड कर दिया. क्यों? Why am I doing this? Because remember, what are we working on? We're working on the PE ratio, and over here we are using the PE ratio. We are relating the PE ratio to the Gordon growth model. Okay, हम Gordon growth model को और PE ratio के अंदर PE के फॉर्मूले को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. उसकी वजह से ये सारी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, राइट. सो प्राइस डिवाइड बाय अगर अर्निंग्स कर रहे हैं, तो प्लीज नोट, अगर मैं लेफ्ट साइड पे एक चीज कर रहा हूं तो वही चीज मुझे राइट साइड पे भी करनी पड़ेगी. फॉर दोज ऑफ यू हु कम फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, आपको समझ ऑलरेडी आ जानी चाहिए. अगर आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो डोंट वरी, जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला. जो मैं आपको कह रहा हूं, ट्रस्ट मी दैट इट इज करेक्ट एंड दिस इज द वे इट वर्क्स, राइट. तो जस्ट यू नो अंडरस्टैंड के इसको आप मेमोराइज कर लें फॉर्मूले को. ओके, तो अगर आपने लेफ्ट तो थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर ये कर रहे हैं कि अगर आपने लेफ्ट साइड पे डिवाइड किया है तो राइट साइड पे भी उसको डिवाइड करेंगे. ओके, और ये न्यूमरेटर के अंदर ऐसे आ जाएगा, ऐसे इस किस्म की, राइट. देखें, ये प्राइस था, इस प्राइस को आपने डिवाइड कर दिया E1 से, तो और इस तरफ भी आपने ऑन द राइट साइड भी आपको E1 से डिवाइड करना पड़ेगा. सिंपल, ये हुआ है. ये जो है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? They're both equal, right? Look at that. Please look at the formula. जो मैंने ऊपर लिखा है, इस वाले फॉर्मूले को देखें और फिर इसको देखें. ये दोनों बराबर हैं. You should be able to understand what I've just done over here. If you have not, just give it some time, pause the video, look at it, go back. तो इस स्लाइड की शुरू से इसको देखें, 2-3 बार देखेंगे, समझ आ जाएगी. ओके, so that's the formula for. That's the formula. That is how we incorporate the P ratio into the Gordon growth model. अगर आपको और कुछ नहीं याद करना, आप सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लें. अगर आपको सवाल के अंदर दिया जाए कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल आपका ये आपको फैक्टर्स दिए जाए, प्रेजेंट वैल्यू, D1, R और G, राइट, और कांस्टेंट आपको बताया कांस्टेंट ग्रोथ रेट्स हैं, तो यू शुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि दिस इज द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो रहा है. और जैसे ही वो आपको पी रेशियो, जब आपको पीई की बात करें, अर्निंग्स की, या अर्निंग्स भी साथ बताएं कि अर्निंग्स कितनी आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपको सिंपली याद रखना चाहिए कि आपको पी अप्लाई करना है टू द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल टू कम अप विद द
रिक्वायर्ड इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट। वो कैसे होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, राइट। तो ये सिचुएशन है, फॉर्मूला ये है उसका, ठीक है। तो अभी मैंने, अच्छा इस स्लाइड के ऊपर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये नया हमने डिराइव किया फॉर्मूला, राइट। पी रेशियो और गवर्नमेंट ग्रोथ मॉडल के बीच में हमने रिलेशनशिप बना दी है। इन अदर वर्ड्स वी इनकॉर्पोरेटिंग द पी रेशियो इनटू द गवर्नमेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है। ये आपका बेस फॉर्मूला है, ओके। बेस आपकी ये है इस फॉर्मूले की, फॉर what we are going to be doing over the next two slides, which is basically how we are going to calculate the implied return of a stock using the growth model incorporated with the PE ratio, और उसके बाद हम implied growth rate भी calculate करेंगे, okay। Remember this topic, what is this main topic जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब topic हम पढ़ रहे हैं, that is equity instruments and implied return and implied growth rates, okay। तो अगर हम लोग अब वर्क एग्जांपल पे आते हैं, इसके अंदर हम पी रेशियो को यूज करेंगे और इंप्लाइड रिटर्न एंड ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे, ओके। अगर मैं आपको ये तो यही वही बेस फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाया था, ओके। सॉरी, अच्छा एक आपको छोटी सी और चीज बताता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ हो और मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट करें, इंप्लाइड रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, वो फॉर्मूला की उसकी डेरिवेशन कैसे होगी, राइट। वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। और दूसरी ऑल्टरनेट सिचुएशन के अंदर मैं आपको ग्रोथ फाइंड करने को बोल सकता हूँ, राइट। मैं आपको बोलूंगा आपको बाकी सारे फैक्टर, अगर मैं आपसे रिटर्न आपको मैं इंप्लाइड रिटर्न कैलकुलेट करने का बोल रहा हूं, तो मैं आपको बाकी सारे फैक्टर्स आपको दिए हुए होंगे किस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर आपको पीवी और ई वन दिया हुआ होगा, या ये टोटल एक करके दिया हुआ होगा, ओके। वो कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। फिर आपको ये कंपोनेंट दिया हुआ होगा, और अगर आर आप कैलकुलेट करें तो जी भी दिया होगा। द ओनली थिंग मिसिंग वुड बी आर। तो आप जैसे इस फॉर्मूले के अंदर बाकी सब वैल्यूज को प्लग इन करेंगे और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे, तो यू विल गेट योर आर। उसी तरीके से अगर ऑल्टरनेटिवली आपको जी कैलकुलेट करने की, ग्रोथ रेट का इंप्लाइड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने को बोला है, तो आपको सब चीजें दी हुई होंगी सिवाय ग्रोथ रेट के। तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर वापस सारे कंपोनेंट्स को प्लग इन करेंगे, ग्रोथ को अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे इस इक्वेशन की, और यू विल फाइंड योर जी, ये ग्रोथ रेट, ओके। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल, ओके। तो लेट्स से अब एक एग्जांपल करते हैं, इसकी हम इंप्लाइड ग्रोथ रेट और इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये है कि लेट्स कंसीडर कि XYZ कॉर्पोरेशन है, उसका XYZ कॉर्पोरेशन का स्टॉक है, ठीक है, जो कि करंटली ट्रेड कर रहा है एट अ पीई ऑफ, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, ये XYZ है, ओके। XYZ स्टॉक, ओके, XYZ स्टॉक है, इसका पी रेशियो जो है वो 20 है, ओके। उसका और ये जो शेयर है, इट इज एक्सपेक्टेड टू पे आउट 50% ऑफ इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड्स। अभी आप ये जरा चीजों पे जरा फोकस करें आप लोग। वो आपको कह रहा है इट्स एक्सपेक्टेड टू पे आउट, इन अदर वर्ड्स ये आपको पे आउट रेशियो दे रहा है। वो क्या होता है, मैं अभी आपको कैलकुलेशन, ऐसे ये आप लोग देख लें गाइस, चूंकि लुक एट दिस, प्राइस डिवाइड पे आउट रेशियो क्या होता है, द डिविडेंड अपॉन, ये एक मिनट, लेट मी शो यू गाइस समथिंग। ओहो सॉरी गाइस, मैं आपको वापस लिख रहा हूं, XYZ स्टॉक है, ओके, और उसका PE रेशियो जो है वो 20 है, ओके। उसका भी अभी आपको मैं लिखता हूं, पे आउट रेशियो जो है दैट इज 50%। ये भी मैं आता हूं, उसको आपको समझाता हूं अभी क्या है, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है कि PE रेशियो उसका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका 20 है और पे आउट रेशियो 50% है, तो इस सिचुएशन में अगर एनालिस्ट एंटिसिपेट कर रहा है कि XYZ कॉर्पोरेशन का डिविडेंड जो है विल एक्सपीरियंस एन स्टेडी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 3%, अगर ग्रोथ रेट जी जो है वो 3% है, तो सवाल में दिया गया कि आप यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
फॉर दिस स्टॉक, या इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लाइड रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, यानी कि आर इज द अननोन फैक्टर, वी सपोज टू फाइंड आर। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेके अब प्लग करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या होगा, पी रेशियो, लुक एट दिस पी रेशियो गाइस, आई एम गोना पुट इट इन ग्रीन, ओके। पी रेशियो इज 20। प्लीज नोट, ये 20 है, ये किधर प्लग इन होगा, ये इधर जाएगा। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज दिस, पीवी stands for, it can be considered to be the fair market price of the stock. E1 is going to be the earnings or the next year's earning. तो हो गया प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, पी हो गया प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, हम पहले डिस्कस करते आए हैं, राइट। इफ दैट इज 20, तो अगर, तो उसने आपको क्या करा है, उसने आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग यू गाइस द इंडिविजुअल प्राइस या इंडिविजुअल प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू या प्राइस जो भी कह लें, और इंडिविजुअल अर्निंग्स, उन्होंने इस टोटल कंपोनेंट को आपको 20 दे दिए यहां पर। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 20 इज इक्वल टू पे आउट रेशियो, क्या करें 50%। प्लीज नोट गाइज, आई एम गोइंग टू रिमूव सम ऑफ द एनोटेशंस। ये देखें भाई, ये जो D1 अपॉन E1 है, दिस इज योर पे आउट रेशियो। डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू पे आउट रेशियो। गाइज रिमेंबर दैट, ओके। डिविडेंड इस केस में नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर की अर्निंग, बिकॉज D1 और E1 दोनों दिया हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड और नेक्स्ट ईयर की अर्निंग जो है वो अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो पे आउट रेशियो आ जाता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू D1 अलग अलग आपको देते हैं, वो भी कर सकते हैं सवाल के अंदर कि आपको D1 अलग दिया, E1 अलग दिया, लेकिन इस क्वेश्चन के उन्होंने आपके लिए आसानी की है, उन्होंने आपको सीधा एक तरह का पे आउट रेशियो दे दिया। तो पे आउट रेशियो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं D1 और E1 को डिवाइड करके, या आपको इस सिचुएशन उन्होंने आपको दे दिया स्ट्रेट अप। तो आप क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू रिमूव द एनोटेशंस, ओके। तो ये जो 50% है, ये आपका क्या है, ये इधर जाएगा। तो ये D1 अपॉन E1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा राइट साइड पे। तो ये आएगा 50% इज इक्वल टू 0.5, ओके। डिवाइड बाय, अब क्या आ रहा है, आर इज द अननोन फैक्टर, हमें फाइंड करना है, राइट। ये है ना, ये वाला आर, वी हैव टू सपोज टू फाइंड आर माइनस जी। हाउ मच इज जी? जी इज 3% इन दिस एग्जांपल, विच इज गोइंग टू बी 0.03। अगर मैं इसको अच्छा, आई एम गोइंग टू रिमूव सम मोर ऑफ दिस, ओके, रिमूव दिस। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली हमें थोड़ी सी बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी गाइस, फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको, इस पूरे कंपाउंड को हम इधर लेके जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा R माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, और मैं इसको इधर ले आऊंगा, ओके। तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 20, ओके, राइट। और फिर हो जाएगा R इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 प्लस 0.03। क्यों? ये इस वाले होल कंपाउंड को मैं इस तरफ जब लेके जाऊंगा तो ये माइनस की जगह +3 हो जाएगा, ओके। लेट्स सी R क्या आता है। R इज गोइंग टू बी इक्वल टू, लेट्स सी, 0.5 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.03, 5.5 गाइस। R इज गोइंग टू बी 5.5%, और जो कैलकुलेशन में आएगा 0.055, ये आया हुआ, ओके। लेट मी पुट दिस 0.6, 0.055, ओके। दिस इज योर इम्प्लाइड रिटर्न, ओके, इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओके गाइस। अगर आप लोग को समझ नहीं आया, आई एम रिपीटिंग दिस, मैं करता रहा हूं और मैं करता रहूंगा। समझ नहीं आया, गो बैक, व्हाट डू यू गाइस डू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट? गो बैक, रीड इट अगेन, वॉच द वीडियो अगेन until you get it. I'm going to remove all the, pause the video, watch it, या रिवाइंड प्ले बैक करके थोड़ा सा वापस देखें until you understand it, okay? I'm going to remove this, and now let's move ahead. Let's take a look at another situation जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे G. Let's say, अच्छा, अब अंडरलाइंग सिनेरियो वही है, बेसिक बेस सिनेरियो वही है कि वो XYZ शेयर है, शेयर XYZ है, इसका PE रेशियो जो है वो 20 है, और पे आउट रेशियो
50% है. ओके, अगर ये सिचुएशन है तो और आपको बताया हुआ कि R जो है वो 10% है. डिटर्मिन द इंप्लाइड ग्रोथ रेट. ये कैलकुलेट द इंप्लाइड ग्रोथ रेट. कैसे कैलकुलेट होगा? वो ऐसे होगा कि ये ऐसे होगा कि पी रेशो ये वाला 20%, $20, 20 एब्सोल्यूट टर्म में नंबर है, ये इधर आएगा. तो ये जगह 20 इज इक्वल टू पे आउट रेशो अगेन 50% है. ये 50% किधर जाएगा? ये इधर जाएगा वापस. 0.5 डिवाइड बाय आर. इस बार आर जो है वो 10% है, तो 0.1 माइनस जी. इसमें हमें जी ग्रोथ रेट फाइंड करना है. ओके, अब क्या करेंगे? वी गोना टेक दिस होल कंपोनेंट ओवर हेयर एंड ब्रिंग दिस ओवर हेयर इन द न्यूमरेटर. तो क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस जी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20. और फिर क्या करेंगे? इस माइनस जी को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू, और इसको इस प्लस 0.5/20 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू 0.1 minus 0.5/20. Okay, if we do the math, what do we get, guys? 0.5 divided by 20, okay, minus plus 0.1. 7.5%, guys. 0.075 or 7.5%. This 7.5% is what is your G or growth rate, implied growth rate. तो गाइज ये बेसिक हम लोग, ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. ये क्वेश्चन आपका दिस इज अनदर एग्जामिनर फेवरेट. थोड़ा सा ट्रिकी है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि पहली दफा इसको देख रहे हैं. लेकिन रिमेंबर, CFA के अंदर आप बहुत सी चीजें पहली दफा देखेंगे, तो सबसे पहले डिस्करेज नहीं होना. राइट, ये एक बात मेरी याद रखें कि कोई भी नई चीज, मेरे जो मेंटर्स थे वो मुझे क्या, वन ऑफ माय मेंटर्स यूज्ड टू टेल मी कि सबसे पहले फियर के बारे में. फियर देखिए, CFA के अंदर आपको थोड़ा सा मैं एक टिप देना चाहूंगा कि फियर के बारे में. फियर हर एक को होगा, हर बंदा, क्योंकि नॉर्मली फियर बंदा कब एक्सपीरियंस करता है? जब बंदा अपने कंफर्ट जोन से या अपने ऐसे एरिया जिधर वो कंफर्टेबल है, राइट, या जिधर आप एक्सेल करते हैं, उस एरिया में आप अनकंफर्टेबल नहीं होते. When in any area in your life, आप देख लें, जिधर आप एक्सेल करते हैं ना, उसमें आप you will be very comfortable in that, right? लेकिन ऐसे जब आप अनचार्टेड टेरिटरी में जाते हैं, यानी कि ऐसे एरिया जिधर आपने पहले आप नहीं गए हैं, वो ऐसे एरियाज में एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, राइट, फियर आता है. तो उस सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू कीप अ स्ट्रांग माइंडसेट. उधर माइंडसेट इंपॉर्टेंट काम आता है. इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक सेइंग बताऊंगा जो मेरे विच माय मेंटर्स यूज्ड टू टेल मी. वन ऑफ माय मेंटर्स यूज्ड टू ट्रेन मी दिस वे. यूज्ड टू टेल मी कि फियर इज नथिंग बट योर सक्सेस कमिंग टू गेट यू. फियर इज नथिंग बट योर सक्सेस कमिंग टू गेट यू. ओके, बिकॉज द मोर यू रन फ्रॉम योर फियर, the bigger and the stronger your fear will get. But fear के बारे में कहते हैं कि fear क्या है? The moment you decide to run towards your fear, अपने fear की तरफ भागें, तो your fear will run away from you. In other words, stand your ground, guys. Stand your ground. Do not, just because कोई चीज नहीं आई है और you guys have not experienced it before, do not run from it. Stand your ground. Deal with it. This is ये ग्रिट कहते हैं, परसिस्टेंस कहते हैं, और उसको टेनासिटी भी कहते हैं. ओके, मैं आपको टेनासिटी माइंडसेट के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो बनाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस कि टेनासिटी क्या होती है. ओके, टेनासिटी इज योर एबिलिटी टू विथस्टैंड डिफिकल्ट टाइम्स, राइट, एंड टू फाइट बैक. एज टेनेशियस एज अ पिटबुल कहता है. आई एम गोइंग टू गो इनटू दैट अ लॉट, राइट. पिटबुल एक टाइप ऑफ एक डॉग की ब्रीड होती है, उसके बारे में कहते हैं. जस्ट क्योंकि बिकॉज में थोड़ा सा ये बात हो गई है, तो टेनासिटी के बारे में कहते हैं कि एज टेनेशियस एज अ पिटबुल. दिस इज अ सेइंग. अ पिटबुल इज अ ब्रीड ऑफ डॉग. एक ब्रीड है
डॉग्स की, जिसके बारे में कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी ये थोड़ी सी हार्श एग्जांपल है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस. पिटबुल एक ब्रीड होती है कुत्तों की, जो जिसके अंदर अगर वो अटैक कर दें आपको, इफ दैट डॉग अटैक्स यू, उसके बारे में कहते हैं कि देयर आर 2 ways टू स्टॉप दैट डॉग फ्रॉम अटैकिंग यू. नंबर 1, द डॉग kills you. This is a very real saying. You guys can go on internet, check this. Pitbulls की बहुत अमेरिका में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अटैक करते हैं. They're very dangerous dogs. I'm not encouraging you guys to go and keep a pit bull. That's not what I'm encouraging, endorsing. लेकिन मैं आपको माइंडसेट समझा रहा हूँ, उसका माइंडसेट समझना है कुत्ते का. क्यों? क्योंकि it's got a very strong mindset. तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा था? There are 2 ways to stop that dog from attacking you. सबसे पहला ऑप्शन, the dog kills you. Second option, you kill the dog. There is no third way out. You cannot stop it. Okay? It will not stop. Underlying concept क्या है? You cannot stop. Fear आप लोग CFA के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे on a daily basis. मैं इसके ऊपर शेयर करूंगा. मेरे CFA Level 2 की जर्नी है, मैंने उसके बाद एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है. You guys should read it. For those of you who are interested, reach out to me. और मैं आप लोगों से वो आर्टिकल शेयर करूंगा. उस आर्टिकल में मैंने आपको अपना Level 2 एक्सपीरियंस शेयर किया है. It took me 3 years to get to Level 2. Right? वो क्यों हुआ था, वो एक डिटेल बड़ी लंबी कहानी है. 3 attempts, third attempt में I got through, and I got through with a very good, very strong grade. लेकिन those 3 years were years of fear. I was afraid. लेकिन bravery जो है, bravery क्या है? Bravery ये नहीं होते, it's not the absence of fear. It's basically you controlling yourself in the face of fear. You cannot give up. You guys cannot give up just because कोई चीज मुश्किल हो गई है या डिफिकल्टी फेस हो रही है. You guys cannot quit. जिंदगी के अंदर मुश्किल चीजें आती हैं, आती रही हैं, आती थी, आती हैं और आती रहेंगी. Those of you who are अगर आप लोग, if you guys fall into the habit, और ये habits बन जाती हैं कि you quit on the first sign of resistance या on the first sign of difficulty. अगर आपको ये, if you are one of these, then I'm not pointing anyone out. I'm just saying, if you are one of those people, remember you can change. You can change. I have seen a lot of guys जो कि complete उनको mindset भी change हुआ ना. The mindset, to change your mind, you first need to change your destiny. You need to change your habits. And to change your habits, you need to change your mindset. Remember that. To change your destiny, you need to change your mind. To change your destiny, you need to change your habits. And to change your habits, you need to change your mindset. इसीलिए मैं बोलता हूँ माइंडसेट के ऊपर मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ, स्पेशली इन थिंग्स लाइक द CFA. इस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर माइंडसेट और ग्रिड बहुत जरूरी होती है. खैर, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई. आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ. और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल शेयर विद यू सून कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे. वीडियो बहुत लंबी हो गई. आई विल दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल सी यू गाइस सून. टेक केयर.